Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge and previous year questions. Let's begin today's episode. First question is, which section of the CRPC deals with the power of the police to investigate? Section 154, Section 156, Section 159 और Section 160. CRPC की कौन सी धारा पुलिस को जांच करने की शक्ति प्रदान करती है? धारा 154, धारा 156, धारा 159 या फिर धारा 160? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 156. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 156. According to section 156 of the CRPC, police officer in charge of a station can investigate any cognizable case without a magistrate's order if the case falls within the court's jurisdiction. The officer's actions in such cases cannot be questioned based on their investigative authority. CRPC की धारा 156 के अनुसार एक स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी किसी भी संज्ञेय मामले की जांच बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के कर सकते हैं यदि मामला अदालत के क्षेत्राधिकार में आता है। ऐसे मामलों में अधिकारी की कार्रवाई को उनकी जांच प्राधिकरण के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which section of the CPC deals with the jurisdiction of civil courts? Section 6, Section 7, Section 8 और Section 9. CPC की कौन सी धारा नागरिक अदालतों के क्षेत्राधिकार से संबंधित है? धारा 6, धारा 7, धारा 8 या फिर धारा 9? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 9. इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धारा 9. According to section 9 of the Code of Civil Procedure, that is CPC, courts have the authority to try all civil suits unless specifically barred. The presence of fees or specific locations does not affect the jurisdiction. सिविल प्रक्रिया संहिता यानी CPC की धारा 9 के अनुसार अदालतों को सभी नागरिक मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है जब तक कि विशेष रूप से मना ना किया गया हो। शुल्क या विशिष्ट स्थानों की उपस्थिति क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is authorized to perform abortions under the medical termination of pregnancy, that is MTP Act? Any nurse, registered medical practitioner, midwife और pharmacist? MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत गर्भपात करने के लिए किसे अधिकृत किया गया है? कोई भी नर्स, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, दाई या फिर फार्मासिस्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी. In the recent case of XYZ versus the Dean of BJ Government Medical College and others, the Bombay High Court ruled that abortion is permissible if continuing the pregnancy would cause severe mental harm to the woman. Under the Medical Termination of Pregnancy, that is MTP Act, registered medical practitioners are authorized to perform abortions. हाल के मामले XYZ बनाम बीजे सरकारी मेडिकल कॉलेज और अन्य में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि गर्भपात तब अनुमत है जब गर्भावस्था जारी रखने से महिला को गंभीर मानसिक हानि हो सकती है। MTP अधिनियम के तहत पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों को गर्भपात करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which section of the Hindu Adoption and Maintenance Act specifies the conditions for a valid adoption? Section 4, Section 5, Section 6 और Section 7? हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की कौन सी धारा वैध दत्तक के लिए शर्तें निर्दिष्ट करती है? धारा 4, धारा 5, धारा 6 या फिर धारा 7? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 6. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धारा 6. In a recent case of Ashok Kumar versus the Inspector General of Registration and others, the Madras High Court has stated that a woman's marital status should not influence the decision regarding her child's adoption. Under Section 6 of the Hindu Adoption and Maintenance Act, for an adoption to be valid, the adopter must have the capacity and right to adopt. The person giving the child must be authorized to do so. The child must be eligible for adoption and all other specified conditions must be met. हाल के मामले अशोक कुमार बनाम पंजीकरण के महानिरीक्षक और अन्य में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि एक महिला की वैवाहिक स्थिति उसके बच्चे के दत्तक ग्रहण के फैसले को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 6 के तहत एक वैध दत्तक ग्रहण के लिए गोद लेने वाले के पास गोद लेने की क्षमता और अधिकार होना चाहिए। बच्चे को देने वाले व्यक्ति को ऐसा करने का अधिकार होना चाहिए
बच्चे को गोद लेने के लिए पात्र होना चाहिए और सभी अन्य निर्दिष्ट शर्तें पूरी होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन इज, for the purposes of the Code of Civil Procedure 1908, every court of small causes is subordinate to the dash, district court only, high court only, high court and district court or none of the options. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उद्देश्यों के लिए प्रत्येक छोटे कारणों की अदालत डैश के अधीनस्थ होती हैं। केवल जिला अदालत, केवल उच्च न्यायालय और जिला अदालत दोनों, या फिर कोई विकल्प नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय और जिला अदालत दोनों। कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस आर सबऑर्डिनेट टू बोथ द हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। छोटे कारणों की अदालतें उच्च न्यायालय और जिला अदालत दोनों के अधीनस्थ होती हैं। Now is the time for practice question. Under section 143 of the Indian Evidence Act 1872, leading questions may be asked in dash: examination in chief, re-examination, cross-examination or none of the options. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 143 के तहत अग्रणी प्रश्न डैश में पूछे जा सकते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ, पुनः जांच, प्रति जांच या फिर कोई विकल्प नहीं। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।